1980 or itself, the land was settled. That is an admitted position. उसके बाद से repeatedly we are saying कि आप हमको proper 3A बना करके भेजिए. That is not coming to us. वो NHAI जो है कोई प्रोविजन दिख रही NHAI से हमको क्या लेना देना है भाई? NHAI को किनारे कीजिए ना, इसे भी हम NHAI से NHAI की ड्यूटी इनको टाइम फ्रेम दे दीजिए. आपको ना देना है. नहीं हाँ, ये हमको देंगे तब हम पे करेंगे. आप My lord, अवार्ड तो बनाइएगा. My lord, I will explain your lordship. 3A का ये लोग भेजे थे हम लोग के पास, वो लैप्स कर गया. उसके बाद से बार बार इनके पास हम लोग लिख रहे हैं कि ओरिजिनल जैसा था. द होल कंफ्यूजन इज कमिंग इज बिकॉज NHAI इज इंसिस्टिंग कि जंगल झाड़ी खतियान है. Who is he to insist? My lord, the DLO is not acting in the capacity of just as a state government officer here, your lordship. NHAI के एक्ट के तहत NHAI तो यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है. That I have already observed. NHAI officials is just looting the property of the poor Adivasis. कहाँ का एरिया का है? रामगढ़ का है. My lord, इसमें डेफिनेशन देख लिया जाए. बस एक डेफिनेट 2 लाइन दिखाई जाता है. सेक्शन 3 दो तीन चीज हम ऑब्जर्व कर. Right also, kindly go through the facts. Yes, I will. Your lordship will not allege me that changing lawyer. If your lordship does not want to hear me, I will go away. No. Why can your lordship say that? I am here to assist. I am saying that this is the duty of the state government and DLO. Kala, but nothing has been done. Let us come on affidavits. I can devote time. Give me few minutes or half an hour. I will explain everything. This is plus stoppage of salary. Still nothing being done. His affidavit says what? Kindly see. वाले लॉ दिखाइए. My lord, section 3A. Somebody is at fault. जो fault पर है वो he will face the music. Whoever is at fault, he will face the music. Yes, That's Should all. also. Section 3A. Power to acquire land. Where the central government is. 3A, your lordship, definition. 3A. Competent authority. हाँ. Means any Small person. So इसके तहत your lordship, we are the competent authority. Under whenever the land is being acquired, the DLO is being appointed as the competent authority. By the central government. Yes, sir. You are the employee of the central government. No, we are employees of the state government, but as far as this purpose is यहाँ concerned, पे लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को ही नोटिफाई कर कर दिया देता गया काला के रूप में. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वही होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर वही होते हैं. जो भी डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर है, धीरे धीरे लॉ हमको भी तो समझ में आना चाहिए भाई. देखो तो कहाँ असिस्ट कीजिएगा, तो आप तो असिस्ट का कीजिएगा. देख लीजिए, हम लोग भी सरकारी वकील रहे. जब डीसी अगर एक्ट अपॉन करता है एज ए इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर, हु विल रिप्रेजेंट हिम? हु विल रिप्रेजेंट हिम? हु विल रिप्रेजेंट हिम? पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट करे, NHAI ही करेगा. बस तो ये आपका अथॉरिटी हो गया. हमारा अथॉरिटी हो गया. तो he is not a competent lawyer? स्टेट का इनके ऊपर ही एक्शन होगा ना. नहीं, he is not competent lawyer then. Of course. वही तो पूछ रहे हैं. He should not represent them. Then you can't ये कैसे represent. कह रहे हैं कि पैसा नहीं दे रहे हैं वो एक NHAI? अलग चीज है. What basis he नहीं will say तो like वो एक that? अलग चीज है. मतलब पहले तो स्टेप बाय स्टेप. एक बार लॉ समझ आप वही लीजिए. बोल रहे हैं competent. Who is the competent authority? काला will do everything. Land acquisition officer. इनका The land acquisition officer is in the control of whom? Me. Then Yes. he is your employee for that Notified purpose. by us. my Yes. lord, there is a difference between the central government and the NHAI. NHAI अलग body है. हाँ. तो ये let him limit himself to the NHAI. हम Let him NHAI not claim to represent the central government. हम- वैसे तो अनिल कुमार जी को बुलाया जाए. हाँ, अगर वैसे बात है, अगर हम नहीं competent नहीं, है तो नहीं, Mr. अनिल कुमार and his ऐसे team is बात नहीं. competent. तो पहला चलेगा who is the competent authority means any person or authority authorized by the central government by notification in the official gazette to perform the function of the competent authority for such area as may be specified in the notification. So when any work has been assigned to any person by the central government, Right. who will control that authority with regard to that function? My lord, इसमें हम सीधा सीधे समझ सिंपल है. अगर डिप्टी कमिश्नर भी है तो अगर वो रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम कर रहा है तो who will represent him?
माय लॉर्ड, वो तो ऑब्वियसली उस समय तो ही बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्योरली इलेक्शन कमीशन। यहाँ पर भी है एक अथॉरिटी, देयर आर क्या कहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई स्टेट एम्प्लॉय होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज होता है। लेकिन अगर बाई पोस्ट किसी को असाइन हो रहा है तो पार्लियामेंट ने अगर दे दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथराइज एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स एनी पर्सन और अथॉरिटी, any person or authority authorized by the central government by notification in the official gazette to perform the function of the competent body for such area in which specified in the. तो ये स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी को ऑथराइज करता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का वो जो अथॉरिटी है, he will be in the control of whom for that function. माय लॉर्ड, प्राइमा फेसी आई एम इन फुल एग्रीमेंट, बट थोड़ा आपको एक्सप्लोर करने दिया जाए। यही कंफ्यूजन है हो रहा है। बट इसमें इशू वो उतना नहीं है मानेगा। अब जो भी होगा एक एक करके चलेंगे ना, जी जी, धीरे धीरे करके चलते हैं। तो ये हो गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। उसके बाद होता है पावर टू एक्वायर लैंड, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सर्टिफाइड दैट द पब्लिक पर्पस फॉर एनी लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस इतना इतना नेशनल हाईवे और पार्ट ऑफ डिक्लेयर इट इंटेंशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा इंटेंशन को, ठीक है ना। उसके बाद है पावर टू इंक्रीज द इशू ऑफ नोटिफिकेशन शैल बी लॉफुल फॉर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन बाय मेक इंस्पेक्शन, जो भी है तो इंस्पेक्शन करेगा। हियरिंग ऑफ एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द लैंड, उसको ऑब्जेक्शन को सुनना है, हियरिंग ऑफ द ऑब्जेक्शन सुनते जाइए। डिक्लेरेशन ऑफ वेयर नो सच है तो डिक्लेयर करेगा। 3D और 3 एक एक करके अब स्लोली चल रहे हैं। द रिपोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिक्लेयर बाय नोटिफिकेशन दैट द लैंड शुड बी द फील्ड। तो ये सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो हम एनएचआई को क्यों सुने और स्टेट गवर्नमेंट को क्यों सुने? हाँ? माय लॉर्ड, खरीद रहा है ना, माय लॉर्ड, हम तो देख रहे हैं। इसलिए तो शुरू से हम ऑर्डर करना शुरू किया कि एनएचआई को किनारे कीजिए। रिपीटेडली ऐसे मैटर्स आ रहे हैं। रिपीटेडली आ रहे हैं, अदालत वकील हमारे सामने खड़ा हो रहे हैं। नहीं, दिक्कत ये है कि हम असिस्ट नहीं कर रहे हैं आपको ठीक से। असिस्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको नहीं असिस्ट करना है, हजूर हमको कहना है कि आपको नहीं असिस्ट करना है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। हजूर बोले हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर रहा है तो हमको बार बार वकील क्या बदल रहा है भाई? नहीं, ये बोल दे कि अपना रोल पढ़ के आएगा ना अथॉरिटी, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वेयर इज एनएचआई? हमको कुछ मतलब है नहीं। तो फिर आप क्यों बार बार आ रहे हैं? हजूर हमको बोला जा रहा है, तो कहते प्रॉब्लम नहीं हो दे रहा रहे था तो सीनियर पर्सन को आपने लाया गया। हजूर देखिए, नहीं तो बार बार हजूर ये भी आपने- नहीं आना चाहिए। ये भी हाँ? आप जब भी अपियर कीजिएगा, वकालतनामा किसी से एक्सेप्ट कीजिएगा, इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द स्टेट काउंसिल कि वेदर ही इज ए नेसेसरी पार्टी इन इट, वेदर ही इज एनी वे इन्वॉल्व इन द प्रोसेस और मेरा नॉट, रोल कब और आएगा? वेदर हु कैन रिप्रेजेंट हूम। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी नहीं है, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर पार्टी है। हम लोग सब बोल रहे हैं, हजूर कम बोले कि एनएचआई करवे नहीं करता है। तो एनएचआई, बोलना पड़ा हाँ तो एनएचआई का कोई बोले नहीं है ये नहीं। तो एनएचआई में यहाँ से डायरेक्ट रोड हजूर यही बना है। हमको अवार्ड दे जमीन देंगे, का रोड यही पैसा बना दे है। देंगे। रोड ही बना रहे हैं, तो ये इनको पोजीशन मिलेगा, मिल गया। मिल गया है, ये रोड बना दिए हैं, हाँ, बना दिए। पैसा इनसे नहीं लेना है, नहीं हमसे ही इनसे लेना है। पैसा नहीं लेंगे, आपसे पैसा क्या टेंशन लिए हुए हैं। हमारा इतना काम है, अब खाली रोल का रिवर्सल यही है